Good evening, everyone. Today, myself Vaibhav Jain, I am a Wellsense coach, and on behalf of Wellsense community, आज मैं सभी को एक warm welcome करता हूँ कि आपने अपने Sunday weekend से time निकाला, and today you are coming here to attend this session, right? And I believe personally कि if you are here today, so there is something going in your mind, right? You must be seeking, बस एक वो secret मुझे मिल जाए, या फिर एक मुझे वो राज पता चल जाए जिससे I can lose my weight as soon as possible, right? Or maybe you must be wondering, yeah, Ambarin was telling about her weight loss. So what exactly she did, or how it happened? Like, how are people losing that much of weight? So what is the hidden secret behind it, and what this community is all about? So friends, this session or the next 20 to 25 minutes is going to be totally full of value and full of, I would say, secrets which can change your life from 90-degree to 180-degree. सो व्हाट इज वेलसेंस कम्युनिटी? वेलसेंस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द हेल्थ एंथुसियास्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, स्किन एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट, राइट, who are together making a holistic platform to help people like you and me, right? तो मेरी भी स्टोरी कैसी स्टार्ट हुई थी. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट आई गॉट introduced with Wellsense community because of my myopic vision, and then out of my passion I started this journey, right? So this community is all about helping people, and we are on a goal of eliminating obesity and diabetes from the nation in the next few years, and we have a set of goal helping 5 lakh people, and this is a step towards sharing that seed of awareness. So without further delay, I would like to invite today on the stage a new speaker, and she has been associated with Wellsense community very recently, and she has undergone a huge transformation in herself. So she will share her story, her experience, and what she learned throughout the journey, and how it can be a positive insight for you. This session will be followed by a Q&A by our Wellsense coaches. So now I'll hand it over the stage to Ambareen. She will take the proceedings further. So Ambareen, over to you. Thank you so much, Vaibhav, for the lovely introduction. So, hi everybody. How are you all? I hope you guys are doing well. Okay, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में. नो, हेल्दी वेट लॉस के बारे में. ठीक है? So, before getting into that, let me tell you all something about myself. I am Ambareen, a mother of 3 kids. यहाँ पे जितनी भी मदर्स अभी मौजूद हैं, इस बात को अच्छे से समझती होंगी कि माँ बनना कैसा होता है. There is no denying the fact that children are blessings for us. लेकिन ये भी सच है कि एक माँ की बॉडी undergoes huge changes during the entire process of childbirth. And as I said, कि मैं 3 बार pregnant हुई. So the last pregnancy, it took a heavy toll on my health. I could see visible changes in the quality of my hair, my skin, my energy levels, and of course the weight gain. तो वेट लूज करने के लिए मैंने तरह तरह के नुस्खे अपनाए, तरह तरह की डाइट्स फॉलो की, लेकिन मेरा वेट था कि जाता ही नहीं था, और जाता था तो फिर वापस भी आ जाता था. तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वेलसेंस कम्युनिटी के बारे में बताया. मैंने वेलसेंस कोचेस को कांटेक्ट किया और फिर उनकी डाइट शुरू कर दी. डाइट लेने के 1 महीने के अंदर ही मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स दिखने लगे. जैसे मेरे बालों का झड़ना रुक गया, मेरी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होने लगा, मेरे हार्मोन्स जो डिसरप्टेड थे वो बेहतर होने लगे, मेरी एनर्जी लेवल्स बेहतर होने लगी, और मैंने काफ़ी वेट भी लूज किया. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ एक बहुत ही हेल्दी वे में हो रहा था, और मुझे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने लगे कि तुम बहुत स्लिम हो गई हो, अच्छी दिख रही हो, एंड सो ऑन. तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि यूं कहूँ कि ये साइंस शेयर करना चाहती हूँ कि हेल्दी तरीके से वेट लूज कैसे किया जाता है. ठीक है? वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टुवर्ड्स अचीविंग अ हेल्दी बॉडी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Vaibhav, can we have the first slide?
Amri, is it visible, right? Hello, Amri, can you see the slide? Yes. So we are going to talk about the successful method of losing weight. Okay. I can see the first slide, Vaibhav, just the weight loss part. Yeah. Shall I start? Go ahead. Yeah. So अभी हम बात करेंगे ओबिसिटी के बारे में। ओबिसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप नजर उठा के देखें तो अपने आसपास आप देखेंगे कि there are so many people who are suffering from obesity, from high blood pressure, from heart diseases, from high cholesterol, gallbladder diseases, type 2 diabetes, ठीक है। एंड ये सारी जो बीमारियां हैं इन सब की जड़ ज्यादातर केसेस में ओबिसिटी होती है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द आइडियल वेट ऑफ अ पर्सन, ये है ना क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमारा आइडियल वेट होना क्या चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें एक और पैरामीटर को समझना होगा जो कि है बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर। यानी जो भी आपका वेट है, फर्ज कीजिए आपका वेट है 60 केजी, तो आप 60 को डिवाइड करेंगे अपनी हाइट से, फॉर एग्जांपल 1.5 मीटर्स के स्क्वायर से, ठीक है। एंड जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर होगा बॉडी मास इंडेक्स। ये जो बॉडी मास इंडेक्स है एक आइडियल पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 18.5 to 24.9, ओके, एंड दैट इंडिकेट्स नॉर्मल वेट। लेकिन एनी नंबर अबव 24.9 indicates that you are in the overweight or obesity range. तो आपको इस चीज को चेक करना है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ये है पहला स्टेप। उसके बाद हम मूव करेंगे आगे वाले स्टेप्स पे। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडे। ओके, यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअली बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अक्सर ये मिथ होता है कि हम सोचते हैं ना कि अगर हम सिर्फ फ्रूट्स और सिर्फ सैलेड खाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, या हम वेट लूज कर देंगे, या हम सोचते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, हम हेल्दी फैट्स नहीं खाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। See, our body is made up of many organs, and our organs are made up of many tissues, and our tissues are made up of trillions of cells. अब हमारे सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती कहाँ से है। कोई गेस करना चाहेगा? यस, एग्जैक्टली, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है खाने से, ठीक है। तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारा जो पैनक्रियाज है वो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, ठीक है। और वो इंसुलिन को उसी प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करता है जिस प्रोपोर्शन में खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर डालता है, ठीक है। इसकी वजह से सेल्स को एनर्जी मिल जाती है और सेल्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। इनफैक्ट इंसुलिन इज लाइक अ की, वो एक चाबी की तरह काम करता है जो कि खाने के ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर डालने का काम करता है। सो इंसुलिन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर बॉडी। बट हमसे गलती हो जाती है, और गलती क्या होती है कि हम बार 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 दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं, दिन भर हमारा मुंह चलता ही रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि खाना बार बार बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, एंड एज अ रिजल्ट
वो खाना, उस खाने के ग्लूकोज प्रोड्यूस करने की वजह से पैनक्रियाज भी इंसुलिन प्रोड्यूस करता रहता है, और ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्स उस ग्लूकोज को अंदर लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्स में तो ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले खाया था, तो उनके अंदर एनर्जी है, अब वो और एनर्जी लेने से, ग्लूकोज लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक रेफ्रिजरेटर है और उसमें खाना भरा हुआ है। ठीक है, अब आप बाहर से कहीं से खाना लाते हैं और उस रेफ्रिजरेटर में डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या रेफ्रिजरेटर खाना एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी, बल्कि वो अपना दरवाजा बंद होने से मना कर देगी। ठीक है, तो आपको खाना बाहर ही रखना पड़ेगा। तो ठीक ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में कि जब हम ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, तो सेल्स एक्सेप्ट करने से मना कर देता है उसको, और वो ग्लूकोज बाहर ही रहता है हमारे ब्लड में, और हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू मेनी डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीज, लिपिड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर, डिमेंशिया, और यहाँ तक कि कैंसर. So this is very important that we understand this, okay, and take the necessary steps to prevent it. Okay. Now, अब इसी स्लाइड में आप नीचे देख सकते हैं कि there is a scale, okay, and ये जो scale है, it indicates the insulin response in our body with respect to different kinds of food items. यानी जो अलग अलग तरीके के खाने हम खाते हैं, फैट, प्रोटीन, वेजिटेबल, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके लिए हमारी बॉडी कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आप इस स्केल में देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में वो फूड आइटम्स हैं जो सबसे कम ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। ठीक है, जो हमारे शुगर में, जो हमारे ब्लड में सबसे कम शुगर स्पाइक करते हैं, और एक्सट्रीम राइट में वो आइटम्स हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी, टू द एक्सट्रीम लेफ्ट लाइज फैट, यानी फैट जिसको हम बहुत बड़ा विलन समझते हैं और सोचते हैं ना कि फैट खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वही फैट हमारी बॉडी में सबसे कम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, एज अ रिजल्ट सबसे कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी दैट वी हैव हेल्दी फैट। ठीक है, जैसे कि घी, बटर, इनफैक्ट इट इज सेड कि 1 टीस्पून ऑफ घी on your chola bhatura or your rice will actually reduce the glycemic index of the food. ठीक है, which makes it beneficial for the body. Okay, similarly आप देखिए प्रोटीन भी वो फूड आइटम है जो कम से कम ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी रिफाइंड कार्ब्स को अगर हम देख ले, जो कि हमारी डाइट का बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करने वाला फूड होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो देखिए वो भी येलो जोन में है, ग्रीन में नहीं है। यानी अगर हम सोचें कि हम सारा दिन फ्रूट्स ही खाते चले जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको उसको एक बैलेंस में खाना होगा। ठीक है, सो दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इंडिकेट्स कि हमें हर चीज को एक बैलेंस के तहत खाना होगा। ठीक है, नॉलेज के साथ एक बैलेंस एंड स्ट्रक्चर्ड वे में खाना होगा। ठीक है, ओके, now we move to the next slide. okay, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। ठीक है, कि हमारी बॉडी आखिर फैट बर्न कैसे करती है। ठीक है, क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो डाइट है, या क्या है जिसकी वजह से बॉडी में फैट बर्न होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है, और वो पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेके हमारे सेल्स में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी डाल देता है। अब इसका ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है जिसके बारे में अब हम बात करने लगे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, एंड ग्लूकागॉन इज प्लेज एन एक्सट्रीमली ऑपोजिट रोल
ऑफ इंसुलिन। वो क्या करता है कि हमारे सेल्स में जो ऑलरेडी फैट मौजूद है उसको ब्रेक करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारी बॉडी काम करने लगती है। ठीक है, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रेफ्रिजरेटर के एग्जाम्पल में देखा था ना कि उसमें जब हम खाना खाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी को सेल्स में डाल रहे होते हैं। यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑलरेडी जो सेल्स में एनर्जी है या जो फैट है उसको आप ब्रेक कर रहे होते हैं, तो इससे जो आपका फैट है वो ब्रेक होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट बॉडी में है वो ब्रेक होता है। किस प्रोसेस से? एक्सरसाइज से। किस प्रोसेस से? फास्टिंग से। सो these two are very very important when it comes to losing weight. Okay, now we move to the final slide. ये जो स्लाइड है इस चीज को इसमें हम उन 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि वेलनेस कम्युनिटी की डाइट का मेन हिस्सा है। सिर्फ डाइट नहीं, जो एंटायर लाइफस्टाइल वेलनेस कम्युनिटी में एंडोर्स की जाती है, उसके जो 4 पिलर्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 4 पिलर्स कौन से हैं ऑप्टिमल हेल्थ के? नंबर 1 प्रॉपर न्यूट्रिशन, नंबर 2 एडिक्वेट रेस्ट, नंबर 3 पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नंबर 4 रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में। प्रॉपर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि आपको ऐसी प्लेट सजाने को बताई जाए, मतलब आपकी प्लेट को इस तरह से हम सजाना सिखाएं कि आपको जो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल जाए। ठीक है, वो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, वाटर इनटेक, प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट। ठीक है, तो यानी आपका खाना ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, और ये चीज हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पे मैं क्या बात करूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो, इस चीज से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इनफैक्ट आवर बॉडी इज मेड टू एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान वेलनेस कम्युनिटी में दिया जाता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो उसको शुरू में बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं बताई जाती है, उसको सिर्फ डाइट के जरिए वेट कम करवाया जाता है और बाद में एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, क्योंकि अगर शुरू में ही वो बहुत हैवी एक्सरसाइज करेगा तो हो सकता है कि उसके जॉइंट्स पे उसका असर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि आप किसी तरह का स्ट्रेस ना लें, आप खुश रहें। ये डाइट, ये एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खुश रहना होगा, आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा, क्योंकि स्ट्रेस रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल इन योर बॉडी, और कॉर्टिसोल जो है वो हमारे वेट लॉस प्रोसेस में वेट लॉस प्रोसेस को रोकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हम खा रहे होते हैं उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। ठीक है, so at all cost you need to avoid stress. The last point is adequate rest. ठीक है, आपकी बॉडी को रेस्ट या स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत है, so you should take adequate rest and adequate sleep, because अगर आप adequate rest नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी उस तरीके से वेट लॉस नहीं करेगी जैसे कि उसको करना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट ये है कि ना आप जब जिम जाते हैं तो आपके जो ट्रेनर्स है वो आपको बताते हैं ना कि आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 2 दिन आपको रेस्ट करना है। क्यों रेस्ट करना है भाई? क्योंकि आपके मसल जो है उस रेस्ट के दौरान ग्रो करती है। ठीक है, इसी तरह जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, एक हार्मोन है वो रिलीज होता है जो वेट लॉस प्रोसेस में हेल्प करता है। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे 4 पिलर्स। अब 2 जो और टेक्निक है जिनके ऊपर हमारी डाइट काम करती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए आप अपनी बॉडी को फास्टिंग मोड में रखेंगे, एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल रात को 8 बजे अगर आपने डिनर किया तो अगला खाना आप सुबह 8 बजे के पहले नहीं खाएंगे। ठीक है, इससे बॉडी फास्टिंग मोड में जाएगी, और फिर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि वो हमारा स्टोर्ड फैट जो है वो बाहर निकलता है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लो कार्ब डाइट।
ऑफ कोर्स आपको थोड़ा कम डाइट खाना कार्ब खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते, ऑफ कोर्स यू कैन ईट, बट एक बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे कि हमने बात की थी ना वो स्केल के बारे में, तो वो स्केल के राइट साइड लेफ्ट साइड को मद्देनजर रखते हुए हम इस डाइट को लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे। ओके, सो नाउ वी कम टू द डायग्नोसिस पार्ट। आपको आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा, कुछ पैरामीटर्स हमें पता करने होंगे जिसके पहले हम आपके साथ काम कर सकें। ठीक है, यू हैव टू नो योर BMI, योर हेमोग्लोबिन, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स पता होने के बाद ही हम लोग आपको कोई डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर्सन का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और उसको अगर हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट कर दी जाए तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, तो जिसका थायराइड है अगर किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसको हाई कैलोरिक डाइट सजेस्ट की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है बिफोर यू गेट इनटू अ डाइट, अदरवाइज यू कैन आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉक। और जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहूंगी आप लोगों को कि हमारी जो सेहत है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी नेमत है, आप समझ लीजिए हमारे लिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो क्या आप वो सारे ड्रीम्स, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जिनका आपने प्लान बनाया है? नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी आपके साथ होगी तभी ना आप अचीव कर पाएंगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लीजिए, कुछ सही स्टेप्स लीजिए, कुछ सही डिसीजंस लीजिए। मेरी दुआ है कि आप लोग सही डिसीजन ले पाए और सही एक्शंस ले पाए और अपनी हेल्थ को अपने हाथ में ले और अपनी हेल्थ को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल and thank you so much for your patient hearing. Now we start the question and answer session. Okay, so thank you so much Ambareen for sharing your heart, because I can see जो आपकी खुद की जर्नी रही है, that was very inspirational, and I guess जितने भी लोगों ने यहाँ पे सुना तो वो देख पा रहे होंगे कि एक महीने के अंदर मतलब not only you have मतलब अपने आप को तो चेंज किया ही है, मतलब द वे थिंग्स हैपन फॉर यू, बट आपने काफी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई भी की है। नाउ इट्स यू नो यू आर कंटिन्यूइंग इट इन अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर प्रोग्राम जहाँ पे आप नॉट ओनली यू आर लूजिंग वेट और यू नो एंड यू आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो दैट इज समथिंग exceptional, right? So friends, now it's time to showcase some of the recent testimonies which we have, and we'll play one video, and following that we'll have a Q&A, and I'll invite our coach Shruti Jain for the same. So let me play a video on that.